ٹھیک ہے میں بات کر رہی ہوں. کوئٹہ کے میرے جمہوریت کے سپاہیوں، پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت محبت اور شفقت سے میرا استقبال کیا. میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں. کوئٹہ کے بہن بھائیوں، میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر. آپ سب نے سنا ہوگا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ ہوا ربیع الاول کے مبارک مہینے میں، جب پاکستان کے اور دنیا کے اربوں مسلمان ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ منا رہے تھے. تو فرانس کی ایک بلڈنگ سے انہوں نے جو توہین امیز خاکے لٹکائے، اس سے ہمارا دل، ہمارے جذبات بہت بری طرح مجروح ہوئے ہیں. تو کوئٹہ کے میرے بہن بھائیوں، میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے اپنا جو احتجاج ہے وہ رجسٹر کراؤ کہ آپ کے دلوں کو اس سے تکلیف پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ علم نشرہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، میں نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اس کے ذکر پہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک کوئی آنچ نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے ذکر کیا، میرا شکریہ ادا کیا کہ بلوچستان کے کچھ طلباء جن کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپ دیے تھے، حصہ دیا تھا، انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کوئٹہ کے میرے بھائیوں بہنوں کہ پنجاب کے اور باقی صوبوں کے بچے جتنے مجھے عزیز ہیں، اتنے ہی بچے مجھے بلوچستان کے عزیز ہیں. اور سنا ہے کہ سوئی کے مقام سے جو گیس نکلتی ہے، اربوں روپے کی جو گیس نکلتی ہے، وہ بلوچستان پورے پاکستان کو فراہم کرتا ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف 600 بچوں کے اسکالرشپ، جو کہ شاید چند لاکھ یا چند کروڑ کا معاملہ تھا، وہ اس حکومت نے ختم کر دیے. اور بلوچستان کے میرے وہ بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رول رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. ان بچوں کی آنکھیں لال ہوئی تھی، زمین پہ ایک چادر بچھا کے سردی کے موسم میں وہ سو رہے تھے، لیکن کسی کو ان کے اوپر رحم نہیں آیا. بہت افسوس کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس بات کا، اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اسکالرشپ بحال ہوں گے. اور مجھے ابھی کسی صحافی نے پوچھا، میرے راستے میں صحافی نے ہوٹل میں مجھے پوچھا کہ آپ نے جو آج بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے آپ بلوچستان کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ میں نے ان کو کہا کہ جو آج میں نے بلوچی لباس پہنا ہے، اس سے میں بلوچستان کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جتنی محبت مجھے پنجاب کے عوام سے ہے، اس سے زیادہ محبت مجھے بلوچستان کا عوام سے ہے. کوئٹہ کے میرے بہن اور بھائیوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں سے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی مسخ شدہ لاشیں مل جاتی ہیں، اور اکثر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ اور غائب ہو جاتے ہیں. ابھی جب میں اسٹیج پہ بیٹھی تھی تو ایک روتی ہوئی بچی میرے پاس آئی، ینگ بچی ہے، وہ اس کا نام ہے اسیبہ کامرانی، اور وہ کوئٹہ سے تعلق رکھتی ہے. اس کے 3 جوان بھائیوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، اور کئی سال ہو گئے آج تک ان 3
भाइयों का कुछ पता नहीं है। शेम शेम शेम। और वो कहती है कि मेरे भाइयों का, मेरे जो 3 जवान भाई थे, उसने अपने मोबाइल फोन पे मुझे उनकी तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि मेरे बूढ़े माँ बाप का वो 3 भाई इकलौता सहारा थे और मुझे आपने जेल में डाला, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। मेरी माँ वहां पर मर गई, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। मेरे बाप को आपने 2 दफा जेल में डाला, मेरी आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन आज जब मैंने उस बच्ची की बात सुनी तो मेरी आंख में आंसू आए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और कहाँ है वो बच्ची? जरा, ये बच्ची है, ये खड़ी है वो बच्ची। 3 भाई इसके लापता है, 3 भाई। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं। जरा अपने ऊपर इस चीज को तारी करके सोचो कि क्या गुजरती है जब एक माँ बाप के 3 बेटे गायब होते हैं। मर जाए कोई तो सुकून आ जाता है, लेकिन जब आपको ये पता चले कि पता नहीं वो मुर्दा है या जिंदा है या वो कहाँ है, तो सोचो उन माँ बाप पर, उन बहन भाइयों पर क्या गुजरती होगी। सोचो, अल्लाह ताला के कहर को आवाज ना दो। इनकी बददुआ में और आसमान में कोई हिजाब नहीं है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला का वास्ता है, होश के नाखुन लो। अपने ही लोगों से सतेले लोगों जैसा सलूक मत करो। और फिर बलूचिस्तान के मेरे भाइयों और बहनों, हमें ये पता चलता है कि ये लोग ये समझते हैं कोई क्वेटा के अवाम को या बलूचिस्तान के अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। उनको उनकी हुकूमत, उनके वजीर आला और उनके वज़रा का फैसला क्वेटा के बलूचिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम शेम। हमारे हाल मिलाना चाहता हूँ, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, माजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो। और फिर आज मुझे फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की एक बेटी डॉक्टर शादिया का वाकया याद आ गया। उसके साथ सालों पहले होने वाला इंसानियत तोड़ वाकया मुझे याद आ गया। उस बेटी की बेहुरमती की गई। जब इन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा कराची का, तो बलूचिस्तान के मेरे गयूर और इज्जत वाले भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, क्या हमारा कल्चर, हमारी रिवायात ये है कि बहन और बेटियों के कमरों में रातों रात घुसकर दरवाजे तोड़कर उन पर हमला किया जाए? हाथ उठा के बताओ कि क्या ये चीज कबूल है आपको? और फिर आज बलूचिस्तान में खड़े होकर मुझे अकबर भुगती शहीद का वाकया भी याद आ रहा है, जो मेरे जहन पर नक्श है। किस तरह एक आमिर ने मुक्के लहराकर कहा था, हम तुम्हें इस तरह मारेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर हुआ, उसने न सिर्फ एक जमहूरियत पसंद लीडर को कत्ल किया, बल्कि अफसोसनाक बात है क्वेटा के मेरे भाइयों और बहनों, न सिर्फ ये कि उसके खानदान को, बल्कि उसके चाहने वालों को उसका चेहरा भी देखने की इजाजत नहीं दी। शेम शेम शेम। और जब उस परवेज मुशर्रफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, तो वो अदालत
शेम शेम शेम। और आज जब मैं यहाँ खड़ी खिताब कर रही हूँ तो मुझे क्वेटा के स्टाफ कॉलेज में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के कहे हुए तारीखी अल्फाज आज मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो, अपने हल्फ की पासदारी करो, आइन का एहतराम करो, पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है, अवामी नुमाइंदों का काम ये है और ये काम अवाम के नुमाइंदों को करने दो। तो कोयटा के मेरे बहन भाइयों, मुझे जरा ये बताना हाथ उठा के कि आज 72 बरस गुजर गए, क्या कायदे आजम की इस तलकीन पर अमल हुआ? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। क्या हुआ? क्या हल्फ को याद रखा गया? क्या सियासत में मदाखलत बंद हुई? क्या आइन का एहतराम किया गया? क्या अवामी नुमाइंदों को पॉलिसियां बनाने दी गई? क्या अवाम का और अवामी नुमाइंदों का हुक्म माना गया? कायदे आजम की रूह भी देख रही है कि उनकी तलकीन को आज मिट्टी में मिला दिया गया। आज नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है। हमारी डिमांड है, बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आइन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। और मेरे कोयटा के गयूर बहनों, भाइयों, बेटों, आपकी गुर्बत, आपकी पसमानदगी और आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी और बलूचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। हाकिम के गिरबान पर आपका नहीं किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं किसी और को जवाब दे होता है। जानते हो ना किसको जवाब दे होता है? जानते हो ना? उसको बिठाने और उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है। और अगर हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा मेरे भाइयों और बहनों। और आपको, मैं बलूचिस्तान के अवाम को, कोयटा के अवाम को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि मुझे आज एक बलूचिस्तान की अजीम फर्जंद की भी याद आ रही है जो आजादी की जिद्दोजहद में बलूचिस्तान के कई सिपाहियों में शामिल था, जो कायदे आजम के सबसे बाएतमाद साथियों में शामिल था, जिसका नाम था काजी मोहम्मद ईसा, और जिसका एक काबिल फख्र फर्जंद आज सुप्रीम कोर्ट का जज है। 17 जजों में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला वो वाहिद जज है। आपको मुबारक हो कि आप सब ने उसके लिए आवाज उठाई और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें ये कहा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस जो था वो बदनीयती पर मुश्तमिल था। तो आज जिसने बदनीयती की
जिसने शफाफ किरदार के हामिल जजेज हजरात के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की, उनको नौकरियों से फारिग करने की कोशिश की, तो आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करती हूँ कि जिस तरह आपने आजाद अदलिया के ऊपर एक हमले को रोका है, इसी तरह आगे बढ़िए और एक और शफाफ किरदार के हामिल जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी हैं, उनको भी इंसाफ दीजिए। वो सच बोलने की पादाश में अब सजा भुगत रहे हैं। वो चीफ जस्टिस से आने वाले दिनों के, उनको सिर्फ सच बोलने की पादाश में हटा दिया गया। उनको सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि उन्होंने कहा कि वर्दी में मलबूस एहलकार मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को कैसे तुम बेल दोगे, हमारी तो 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। और उसी सच बोलने की सजा उसको आज मिल रही है। आगे बढ़िए। मैं मुअज़्ज़िज़ जजेस हज़रात से ये दरखास्त करती हूँ कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को भी इंसाफ फराहम कीजिए और इंशाअल्लाह तुम सुन लो, वो वक्त आ रहा है कि तुम्हारी 2 साल की नहीं, तुम्हारी 72 साल की मेहनत जाया होने को है। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है। वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। और आखिर में एक और बात मेरे बलोचिस्तान के भाइयों, मुझे अलिफ लैला के एक और किरदार का नाम याद आ रहा है। भला कौन? कोयटा के भाइयों और बहनों पूछो कौन? उसका नाम है आसिम सलीम बाजवा। वो शख्स भी यहाँ का हाकिम रहा है, यहाँ का बादशाह रहा है, बल्कि वो यहाँ बलोचिस्तान के अंदर वोट की इज्जत से खेलता रहा है। वो यहाँ भी अपने पेशावराना फराइज की जो अंजाम दही है, वो उसको नजरअंदाज करके यहाँ भी वो सियासी करतब दिखाता रहा है। वो भी माँ और बाप के नाम से सियासी पार्टियां बनाता रहा है और पता नहीं क्या कुछ करता रहा है। हम पूछते हैं, कोयटा के अवाम, आप पूछते हो ना मेरे साथ? पूछते हो? हाथ उठा के बताओ, एक सिरे से दूसरे तक पूछते हो ना? हम पूछते हैं कि एक नौकरी पेशा होने के बावजूद तुम्हारे पास अरबों खरबों के असासे कहां से आए? हम पूछते हैं कि ये अरबों रुपए कहां से आए, तो वो चुप। हम पूछते हैं कि ये पिज्जा क्या चीज है, तो वो चुप। हम पूछते हैं कि ये 99 कंपनियां कहां से वजूद में आ गई, तो वो चुप। हम पूछते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के अरबों खरबों के असासे कैसे बन गए, तो वो चुप। हम पूछते हैं कि SECP के रिकॉर्ड में तुमने जो तब्दीलियां करवाई और जो जालसाजी की, फ्रॉड किया, वो क्यों किया, तो वो चुप। हम पूछते हैं कि रसीदें दो, तो वो चुप। वो चुप तो है मेरे भाइयों, लेकिन इस सिलेक्टेड इमरान खान और इस सिलेक्टर्स में भी इतनी जरूरत नहीं कि उससे पूछे। ना कोई नैब, ना कोई FIA, ना कोई एंटी करप्शन, ना कोई SBR और ना ही कोई इदारा, ना ही कोई अदालत। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, ऐसा नहीं चलेगा। हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। बोलो, देना पड़ेगा ना? रसीदें तो आपको दिखाना पड़ेगी।
असिस्टेंट नहीं रहे तो चेयरमैन सीपेक से भी इस्तीफा दो, क्योंकि अरबों खरबों का काम तुम्हारे जैसे दागदार आदमी के हवाले नहीं किया जा सकता। और मेरे भाइयों, इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। ये तकदीर आप बदलेंगे। पाकिस्तान की तकदीर, बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। ये तकदीर आप बदलेंगे। और यहां अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बटेंगे। माओ के सपूत, बहनों के भाई और बीवियों के शौहर लापता नहीं होंगे। तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेशन नहीं होंगे। आपके वसाइल का इस्तेसाल नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी को वोट की